I'd like to honor you on behalf of JUIT family, and now I would like to request you to have your address to the gathering who are waiting to hear your words of wisdom. Thank you so much. मैडम आई एम वेरी एम्बेरेस्ड, आपने बहुत ज़्यादा कह दिया। मैं तो इस यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूँगा। थैंक यू। हिज एक्सीलेंसी ऑनरेबल गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश रेस्पेक्टेड श्री शुक्ला साहब, द चांसलर ऑफ JUIT, रेस्पेक्टेड श्री S.C. सक्सेना जी, प्रो चांसलर JIT Noida, Vice Chancellor Sharma ji, all esteemed faculty members sitting on the dais, our very respected dignitaries, including Sharma ji, DC Sahab, SP Sahab, members from media, other dignitaries, proud parents, and my dear students. It is my proud privilege today that as a representative of this esteemed university, as Pro-Chancellor of this university, I am welcoming our very distinguished son of India, respected Shri Shukla Sahab, who has been a great servant of India, serving society for over 5 decades in different capacities. First as member of Legislative Assembly of Uttar Pradesh, then as minister in government of UP, then as minister, honorable member of Rajya Sabha, honorable member government of India, and has brought great respect and dignity to every post he represented over the years. Sir, we are truly inspired by your gracious presence today. And my dear students, as I ask forgiveness, that's why I was mentioning a very worthy convener of the program, Madam, that I am guilty that for some reasons this convocation is delayed. So I ask for forgiveness first, and then after this I request you that Honorable Governor Sahab, as Chancellor of the University, on the request of us, has come down to bless you. Kindly stand at your place and give a standing ovation in his honor. Please. We are truly inspired by you. Thank you very much. Thank you. Allow me to begin this important occasion with a meaningful quote by a great son of humanity, the father of modern South Africa, Mr. Nelson Mandela, who once said, education is the most important weapon which you can use to change the world. As we stand in this temple of learning on the threshold of this convocation ceremony, let us understand its meaning more carefully. I want to definitely take 2 minutes, though I will be talking for 10-12 minutes, you have to bear with me. And I will request you कि कन्वोकेशन बार बार नहीं आते, इस
कि गरिमा को मनाने के लिए आप लोग अपना जॉब छोड़कर, अपने बिजनेस छोड़कर आपके पेरेंट्स आए हैं, तो उसकी गरिमा को बनाने के लिए आपका बेस्ट जो कंडक्ट है उसकी एक टेस्ट है जो गवर्नर साहब ने आज समय निकाला है यहाँ पर आकर। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वगना घाट के यूनिवर्सिटी वगना घाट किसी को, बहुत कम लोगों को मालूम है कि हाउ दिस टुक शेप। इट इज ए बेंचमार्क फॉर द इंस्पिरेशन टू ड्रीम। आप जब एज स्टूडेंट्स यहाँ से जा रहे हैं या गए या आगे बढ़ेंगे लाइफ में, यू हैव टू ड्रीम। It is also an institution, inspiration to how you can impact the society. It is perhaps the finest example of how a private sector called JP Group can realize the dream of government of a state. It was way back in 1999 when Professor Dhumal Sahab, the then Chief Minister of Himachal Pradesh, was thinking how to develop education infrastructure in Himachal Pradesh. He asked God Sahab, our respected father of the company, Shri Jai Prakash ji, कि private sector and government should work together. And in October 2000, the foundation stone laid on this pahadi. It is barren land. एक फोटो यहाँ पर मैं देखा लगा हुआ मेरे तो यहाँ पर है मानस पटल में, तो I was there present on that day when Honorable CM laid the foundation stone. But what no one knows, if I may say with humility, what no one knows, and many of that only in 2 years, that is October 2002, Honorable Deputy Prime Minister Shri Advani came and inaugurated the institution. In 2 years. And it is testimony of all those students, the first batch, the second batch, the third batch, जिनके सामने कैंपस बना, the first vice chancellor, the director, the registrar, those people in the government of Himachal Pradesh, those respected secretaries who supported this institution. A 8,000 alumni network is present. More than 1,000 ambassadors of this university are serving the country across the globe. So this is this university. मेरे स्टूडेंट्स, सच तो यह है कि मुझे आज अपनी उस 1985 में जब पास हुआ था मैं इंजीनियरिंग करके, तो 84 में मैंने एक कन्वोकेशन अटेंड किया है बिट्स पिलाने का, और मेरा कन्वोकेशन नहीं था। जैसे कि यहाँ इस हॉल की जो लास्ट रो है, बिकॉज ये इंजीनियरिंग कंपनी ने बनाया, जयप्रकाश जी ने इसको कंसीव किया, एक बहुत अच्छे आर्किटेक्ट ने इसको प्लान किया, तो आपको पास की आवाज़ आ रही है या आप देख पा रहे हैं। मैं उस 84 के कन्वोकेशन को याद करता हूँ, तो सबसे लास्ट में बैठा हुआ था मैं, क्योंकि वो किसी और गति कन्वोकेशन था। के बिरला जी चांसलर थे हमारे। आई ऑलवेज थॉट कि मेरे को भी कहीं मौका मिलेगा, लेकिन नहीं, मैं कंपनी की सेवा कर रहा था, नौकरी कर रहा था 85 में। मैं कन्वोकेशन के लिए नहीं जा पाया, डिग्री मेरे पास घर पर आई, पर ये ईश्वर की कृपा है कि मैं आपके सामने हूँ। वाई आई एम नरेटिंग दिस इज कि जयप्रकाश जी के लीडरशिप में, दिग्दर्शन में 4 यूनिवर्सिटीज में किसी न किसी रूप में मैं भी काम कर रहा हूँ। पर एक बात क्लियर है, वो ये है कि चाहे वो 500 साल पहले हो, चाहे वो 1910 हो या 2020 हो, गुरुओं का स्थान अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने शब्दों में अपने लेख में लिखा है। मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ जो जेपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भूल नहीं सकते। आप लोग इस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहे हैं, आप लोग इस पहाड़ी पर रहे हैं,
जिसने कि सूर्य देवता को पूर्व में सूरज होते देखा है और फिर पूरा सफर होल डे में होते हुए सूर्यास्त होते हुए देखा है। ये जब सूर्य का उदय होता है तो अंधेरा चला जाता है और जब सूर्यास्त होता है तो अंधेरा वापस आ जाता है। बहुत सिंपल बात है। इसी तरीके से अगर सूर्योदय का प्रकाश और सूर्यास्त का अंधकार है, उसी तरीके से ज्ञान प्रकाश और अज्ञान अंधेरा है। तो एक ही बात कर सकता हूँ कि जहाँ सूर्य देवता का स्थान कितना ऊपर है, लेकिन ये बात याद रखी जाए कि चाहे डिफरेंट ज्योग्राफी, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट पार्ट ऑफ द ईयर, कहीं पर सूर्य का पूरा समय 6-8 घंटे, कहीं 12 घंटे है, लेकिन अंधेरे को आना है। लेकिन अगर ज्ञान प्रकाश है और अज्ञान अंधेरा है, तो गुरु का दिया हुआ ज्ञान कभी अंधेरे में कन्वर्ट नहीं होता। इसलिए गुरुओं का स्थान सबसे ऊपर होता है। तो मैं सभी गुरु लोगों को, मैडम लोगों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि मैं अपनी इस बात को आपके सामने पहुँचा रहा हूँ। 1985 का दिन मुझे याद हमेशा आता है, क्योंकि उस समय आप ही की तरह मैं 500 पर संस्था को ज्वाइन कर रहा था, जयप्रकाश जी की एज ए इंजीनियर। उस समय इनोवेशन नाम की चिड़िया थी तो, लेकिन नजर नहीं आती थी, क्योंकि ये इन्वेंशन था, इनोवेशन नहीं था उसका। आई कैन से विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन पिछले 5 साल में से इनोवेशन का नाम नहीं आता है। और जैसा कि ऋषि साहब ने बताया, और मैं इस बात पर ह्यूमिलिटी से कह सकता हूँ कि यस, मैं ये सोचता हूँ कि 2022 से 2030 तक का जो पीरियड है वो डिकेड ऑफ इनोवेशन जेपी सेवा संस्थान की सारी यूनिवर्सिटी मना रही हैं। और उसके लिए जो भी फैसिलिटी, लैब, स्टार्टअप फंडिंग जो भी कर सकते हैं हम करेंगे। एक डिफरेंस है जो हम सबको समझना चाहिए, क्योंकि परेशानियाँ तो आएंगी, परेशानियाँ नॉट सोशल, नॉट पॉलिटिकल, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ रिलेटेड। कोविड का उदाहरण आप सबके सामने है। साइंटिस्ट सीक्स अंडरस्टैंडिंग, साइंटिस्ट सीक्स अंडरस्टैंडिंग, इन्वेंटर फाइंड्स सॉल्यूशन, इट इज एन इनोवेटर which who finds success in achieving global application of that solution by any means, and then only he or she becomes a game changer. इसीलिए इनोवेशन का आज की तारीख में बजवर्ड है। कैसे ये लाइफ को, जो इन्वेंशन हो चुके हैं, उनको कैसे बेटर कर सकता है, कैसे। तो सिंपल बात है, होटल्स हैं, हजारों साल से होटल्स हैं। होटल ताज है, ओबरॉय है, आईटीसी है, उनका मार्केट कैप अगर 1 बिलियन है या 2 बिलियन है, लेकिन डिलीवरी सिस्टम जिसके लिए कंप्यूटर की एप्लीकेशन और ई कॉमर्स है, उनका बिलियन डॉलर में मार्केट कैप है। तो ये एक गेम नया हो गया। तो मैं जब इसके बारे में बात करता हूँ तो उससे मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा फिनटेक के बारे में, जोमेटो के बारे में, स्विगी के बारे में। मैं अभी भी कन्वेंशनल बात करना चाहता हूँ। तो मुझको लगता है कि आज जो बात हो रही है उसका अगर 1% भी आपके पास रहेगा, और हमारे पास तो आदरणीय सांसद साहब का अभिभाषण होगा जो हम सबको बहुत आगे तरह से दिखाएगा। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट कि ऐसा कौन सा इन्वेंटर है, ऐसा कौन सा इनोवेटर है जो फेल ना होता, कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो खराब ना होता। और जब ये एक्सपेरिमेंट खराब होता है तब आपकी परीक्षा होगी। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट थॉमस अल्वा एडिसन, माई हीरो एंड द फाउंटेन हेड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस जनरेशन, जिनके नाम पर 1093 पेटेंट हैं। यूनिवर्सिटी के 36, 39, 40, 50 पेटेंट हो सकते हैं। एक आदमी के नाम 1093 पेटेंट, who on one hand
shall always be respected for translating insights of invention into practical reality of innovation. While on another hand, he shall forever be remembered for resilience and character. Please mind my word character. He demonstrated in the face of adversity. जब जब आपको बिजनेस का लॉस होगा, जब जब आपकी प्रतिष्ठा खराब होगी, तब आपके कैरेक्टर का टेस्ट होगा, आपकी रेजिडेंस का टेस्ट होगा। मैं आपको ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब हम पास होकर जाते हैं 21 से 28 साल की उम्र में, हमको लगता है कि हम पे कोई गलती नहीं होने वाली है। अनफॉर्चुनेटली लाइफ में सब होता नहीं। इसलिए मैं एक बात को आपके साथ रखना चाहता हूँ। उन्होंने एक बात कही है इसके लिए, क्योंकि रेजिलियंस के लिए जरूरी है आपके पास परसिवरेंस का होना। Our greatest weakness, I am quoting Mr. Edison, our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. Just one more time. मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनका एक फेमस इनोवेशन है फोनोग्राफ। गूगल बाबा सबके पास है, आप उसको पढ़ देखिएगा। और उस फाइनेंशियली कई बार ये बैंकरप्ट के कगार पर पहुँच गए, लेकिन उन्होंने हमेशा अगर फेल क्या बोला, ही रिमार्क prophetically and prophetically on every failure. He said, I have not failed. I have not failed. I just found 10,000 ways that won't work. आज की इस दीक्षांत समारोह में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, और वो है कि आपके पेरेंट्स ने आपको बेस्ट एजुकेशन दी थी। जेपी यूनिवर्सिटी में आपने डिग्री ले ली, इसके बाद कुछ लोगों को एमटेक करना होगा, कुछ को पीएचडी करना होगा, अपना कैरियर चूज करना होगा, कैरियर चूज करना होगा। और कैरियर चूज करने में फिर कुछ ऐसा होगा कि आपको लगेगा आपने सही चूज किया, गलत। कैसे मालूम पड़ेगा तो सही था गलत है? इसके लिए आपको अपना हिडन पोटेंशियल ढूंढना पड़ेगा, और उस पोटेंशियल को आपको डेवलप करना पड़ेगा। कैसे डेवलप होगा वो? कैसे डेवलप होगा वो? एजुकेशन के बाद फैमिली कमिटमेंट्स हैं, एस्पिरेशंस हैं। एक इसमें बात आती है जो मेरे हिसाब से टाइम टेस्टेड बात है, मेरे लिए भी, मनोज गौड़ पर्सनली के लिए भी उसकी परीक्षा है, और वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर वर्ड को हम कई मीनिंग दे सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर जैसे मधु का मतलब भी कई तरह का हो सकता है। मधुशाला को लोग मधुशाला बना लेते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कायदे में हमारे मधुर स्वभाव में मधुरता होनी चाहिए, जिससे कि लोग आपको याद रखें, आपको लाइक करें। उसी तरीके से एक कैरेक्टर हो, वो कैरेक्टर ही था जो आदरणीय गवर्नर साहब जब लॉयर थे और उसके बाद उन्होंने सोचा कि वो समाज सेवा, देश सेवा कैसे कर सकते हैं, और किस तरीके से उस पोजीशन में पहुंचे जहाँ मात्र मुश्किल से 32 लोग पहुँच पाते हैं। तो उस का जो एक डिस्टिंक्शन है, एक पर्सनैलिटी का और कैरेक्टर का, मैं सोचता हूँ कि आपको मैं अपने माध्यम से बताऊँ। पर्सनैलिटी क्या है? इट इज योर बेसिक इंस्टिंक्ट, हाउ यू थिंक, हाउ यू फील, हाउ यू एक्ट। कैरेक्टर इज योर कैपेसिटी टू प्रायोरिटाइज योर वैल्यूज ओवर इंस्टिंक्ट्स। पैसे ज़्यादा आ गए तो खराब कर दिए, ज़्यादा तारीफ हो गई दिमाग खराब हो गया, अगर फेल हो गए तो शराब में उसको डुबो लिया, बहुत गड़बड़ हो गई उसको झटकने की कोशिश कर रहा है। नहीं, कैरेक्टर डेवलप करना। पर्सनैलिटी इज हाउ यू रिस्पॉन्ड टू अ टिपिकल डे, कैरेक्टर इज हाउ यू शो अप ऑन योर बैड डे, ऑन योर टफ डे। Personality is not your destiny, it is your tendency.
And character is a skill set which enables you to transcend that tendency to be true to your principles. How you can give the test when you face that. इसीलिए मैंने थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करी। एक और एग्जाम देना चाहता हूँ। हेलन केलर, the greatest example of a human being born with the most difficult degree of bad luck, deaf, dumb, सब कुछ ही हो। She exemplified character cannot be developed in ease and quiet, only through experience of trials, sufferings can the soul be strengthened, vision cleared, ambition inspired and success achieved. हेलन केलर ने जब तक माना जाती रहेगी उनका उदाहरण हमेशा लोगों को इंस्पायर करेगा। लेकिन हेलन केलर ने जो बोला, महात्मा गांधी ने उसे कुछ और तरीके से बोला। महात्मा गांधी जी ने कहा, वॉच योर थॉट इट बिकम योर वर्ड, वॉच योर वर्ड इट बिकम योर एक्शन, वॉच योर एक्शन इट बिकम योर हैबिट, वॉच योर हैबिट इट बिकम योर कैरेक्टर एंड वॉच योर कैरेक्टर इट बिकम योर डेस्टिनी। मेरे स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा मन में नहीं कि ऐसी कोई चीज़ हम आपको बता दें जिसको समझते ना हो, लेकिन इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जो आज इस प्रोटोकॉल में लिखी हुई है, ये जरूर ईमानदारी से कोशिश की जाती है कि आपको ईमानदारी से वो चीज़ बताई जाए जिसको हम थोड़ा बिलीव करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं और शायद आपको काम आएगी। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, एक ही सलाह है आपसे, मेरा एक आशीर्वाद है आपसे कि आप वो सब कुछ करें जिससे कि आपके मन को सेटिस्फेक्शन हो और सोसाइटी को अच्छा हो। और ज़्यादा नहीं कहूँगा, लोग मेरे बारे में थोड़ा बहुत बात करते ही होंगे और ये कहते होंगे कि मुझे पिक्चरों का बहुत शौक है, तो फिर मैं अंत में आपसे मतलब क्या कहता हूँ कि 3 पिक्चर जरूर देखिएगा, बाकी पिक्चर देखेंगे ना देखेंगे। एक तो देखिएगा कास्टअवे, अगर नहीं देखिए व्हाट इज कास्टअवे, जो देखिएगा टॉम हैंक्स की। दूसरी देखिएगा शशांक रिडेम्पशन, और तीसरी देखिएगा सेविंग प्राइवेट ब्रैंड, और तीनों एक दिन में देखिएगा, एक हफ्ते में एक देखिएगा और जो आज कहा है उन तीनों को जोड़िएगा, आपको कुछ बेहतर लगेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। आई नो आपने आज जो भी कहा उसके आप खुद एक बहुत बड़े टेस्टामेंट हैं। आपका कंट्रीब्यूशन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, पावर, रियल एस्टेट एंड अबव ऑल एजुकेशन में सबके सामने है सर। Your philanthropic work and endeavors in benefit for the society all are just a testament of your very big and holistic character, sir. Thank you for your words of wisdom, which not only motivates us, sir, but refuels the spirit of resilience and dedication and teaches us the lesson of humbleness and simplicity. Now, on behalf of JUIT family, I would like to extend my heartfelt gratitude for the presence of Honorable Governor of Himachal Pradesh, Chancellor of JP University of Information Technology, His Excellency Shri Shiv Pratap Shukla जी। माननीय महोदय के प्रोफाइल को कुछ शब्दों में बांधना बहुत ही कठिन है, बट सर आपकी अनुमति से मैंने ये प्रयास किया है। श्री शिव प्रताप शुक्ला जी का जन्म गोरखपुर जनपद के ग्राम रुद्रपुर पोस्ट खजनी में 1 अप्रैल 1952 को हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम रुद्रपुर खजनी में ही हुई। कक्षा 9 से डिग्री स्नातक की शिक्षा गोरखपुर में। आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री के रूप में कार्य कर रही थी। आप राजनीतिक रूप से 1983 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आपने 1989 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में गोरखपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से प्रथम बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। इसके उपरांत वर्ष 1991 में पुनः निर्वाचित हुए एवं उत्तर प्रदेश की पहली भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सरकार में बेसिक शिक्षा,
प्रौढ़ शिक्षा एवं भाषा विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का कार्यभार संभाला। आपने उद्यान विभाग, खेलकूद, युवा एवं कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण विभाग का दायित्व का निर्वहन बहुत ही सफलतापूर्वक किया। आपने 1993 में पुनः विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1996 में चौथी बार विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के पश्चात कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह की सरकार ने कारागार, विधि एवं न्याय एवं ग्राम विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री के रूप में अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। आपने 10 जून 2016 को उत्तर प्रदेश की राज्यसभा के सदस्य के लिए निर्वाचित हुए। आपने 3 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार का दायित्व संभाला। आपने 4 जुलाई 2022 में राज्यसभा सदस्य के रूप में अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। एंड देन 18 फरवरी 2023 में आपने हिमाचल के 29वें राज्यपाल का कार्यभार संभाला। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन। और इसके साथ ही सर आपने जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुलाधिपति के रूप में भी अपने दायित्व का निर्वहन करना शुरू किया। Sir, it's my great pride and privilege to get this opportunity to welcome you to JUIT once again. And now I would like to request our Vice Chancellor Sir, Pro-Chancellor Sir, to escort the Governor of Himachal Pradesh for his convocation address. तो हमारे समक्ष बैठा हुआ वर्तमान भारत को मैं नमस्ते करता हूँ। जेपी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रो चांसलर श्री मनोज गौड़ जी, जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रो चांसलर श्री एस सक्सेना जी, कुलपति प्रोफेसर आर.के. शर्मा जी, राजभवन में मेरे सचिव श्री सी.पी. वर्मा जी, सोलन जिले के उपायुक्त श्री मनमोहन शर्मा जी, पुलिस अधीक्षक श्री गौरव सिंह जी, जिला प्रशासन के अन्य अधिकारीगण, विभिन्न संकायों के विभागाध्यक्ष, आज इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के उत्साह वर्धन करने के लिए यहाँ उपस्थित उनके अभिभावक, पत्रकार मित्रों, मैं आज पहली बार किसी निजी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। इस नाते की जयप्रकाश जी का नाम बहुत बड़ा है। अपने जीवन में उन्होंने भारत देश के लिए बहुत कुछ किया है। इस नाते से मेरे तो हम जिस पद पर है हमें भी प्ले कार्ड रहता है। थोड़ा बहुत इधर उधर जरूर हटिए लेकिन कोने में
तो आज जेपी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बागनाघाट सोलन के 6ठे दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर के मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी स्नातक विद्यार्थियों को मैं बधाई देता हूँ, वेलकम करता हूँ। आप सब विद्यार्थियों की सफलता के पीछे केवल आपकी कड़ी मेहनत ही नहीं है, बल्कि आपके परिवारजन का सहयोग तथा आपके प्राध्यापकों की प्रेरणा और मार्गदर्शन भी उसमें शामिल है। इसलिए विद्यार्थियों की सफलता में अथक योगदान के लिए मैं उनके माता पिता, अभिभावकों, प्राध्यापकों, संकाय सदस्यों को भी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। प्रारंभ में विवेकानंद जी का एक ध्येयवाक्य इसी जायज से कहा गया था और सचमुच विद्यार्थियों के लिए विवेकानंद जी का नाम हमेशा अपने मन में रखना चाहिए, जिन्होंने कहा था कि शिक्षा वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर कर देता है। इसी संदर्भ में जब यह शब्द आया तो मुझे ध्यान पड़ गया, आज जरूर मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ, संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े होने के नाते उस पर मैं राजनीतिक दल के विचारों को कह भी नहीं सकता हूँ। फिर भी मुझे भारत के एक अत्यंत श्रेष्ठ राजनेता का वह शब्द याद है, अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा। सूरज उगेगा, अंधेरा छटेगा। और उसके बाद का शब्द मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपकी जिंदगी में भी विवेकानंद जी का यह शब्द जो है कि शिक्षा व प्रकाश है जो अंधकार को दूर करता है, तो अंधकार का मतलब जब तक शिक्षा नहीं है तब तक आप अंधकार में हैं। शिक्षा को ग्रहण कर लेने के बाद आपके जो तमस है वो दूर हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है, शिक्षित हो जाते हैं और आप उस विषय के केवल अध्येता नहीं रह जाते हैं, बल्कि उस विषय के मास्टर हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि शिक्षा एक ऐसा साधन है जो ज्ञानता और अंधकार को मिटाकर ज्ञान और समझ का प्रकाश करती है। जब कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है तो अज्ञान और समझ के माध्यम से अपनी और समाज की समस्याओं का समाधान कर सकता है। शिक्षा जीवन में विभिन्न पहलुओं में सुधार लाती है और व्यक्तियों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है। दोनों शब्द है, अधिकारों और कर्तव्यों। मुझे लगता है कि सब लोग सामान्य रूप से अपने अधिकार के प्रति बहुत सचेत करते रहते हैं, लेकिन अधिकार शब्द बाद में आता है, कर्तव्य पहले आता है। हम अपने कर्तव्यों के प्रति कितने जागरूक हैं? मुझे लगता है कि मेरे कर्तव्य अगर सफलतापूर्वक हमने पूरा कर दिया तो अधिकार हमें मिल जाएगा। इसलिए शिक्षा न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक होती है, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
विद्यार्थियों तथा सज्जनों, देवियों तथा सज्जनों, आज हम एक ऐसे जश्न का हिस्सा बन रहे हैं जो वर्षों के समर्पित अध्ययन का परिणाम और साथ ही नए अवसरों और रोमांच की शुरुआत भी है। पढ़ते रहे, आज रोमांच हो रहा है कि मुझे मेरे पढ़ाई का फल एक डिग्री के रूप में मिला है, मेडल के रूप में मिला है, तो रोमांच। मैं अपने स्नातकों को इस महत्वपूर्ण दिन की हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। आपकी दृढ़ प्रतिबद्धता, अथक प्रयास और कड़ी मेहनत ने आपको इस महत्वपूर्ण क्षण तक पहुंचाया है। प्यारे विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह एक समारोह से कहीं अधिक है। यह एक संस्कार है। यह एक अध्याय के अंत और दूसरे अध्याय की शुरुआत को दर्शाता है। यह आपकी बौद्धिक और व्यक्तिगत विकास की यात्रा का प्रमाण है। जैसा कि आप अपने जीवन में एक नए अध्याय की दहलीज पर खड़े हैं, तो याद रखें कि यह केवल अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है। अनंत संभावनाओं से भरी हुई एक नई शुरुआत है। डिग्री प्राप्त कर लेना छोटी बात है, उस डिग्री को संभाल करके रखना, उस डिग्री के अनुरूप अपने को बनाना और उस डिग्री के माध्यम से पूरे समाज में आप जाने जाएं, इस नाते यह एक नई शुरुआत है। इस दिन के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारे राष्ट्र और वैश्विक मंच के गतिशील परिदृश्य को पहचानना आवश्यक है। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और अन्य अभिनव क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति के लिए साथ ही साथ इसकी तकनीकी पुनर्जागरण का अनुभव कर रहा है। ये प्रगति उद्योगों में क्रांति ला रही है, रोजगार के लिए नए अवसर पैदा कर रही है और संभावनाओं से समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रही है। स्नातक छात्रों, मैं आपसे इस परिवर्तनकारी युग में सबसे आगे रहने के लिए आग्रह करता हूँ। लेकिन सबसे आगे रहने में आगे रहना होगा। किसी के टांग में टांग लड़ा करके आगे रहने में ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ। शिक्षा राष्ट्रीय विकास की आधारशिला है, एक नींव है जिस पर समाज अपने भविष्य का निर्माण करता है। एक सुशिक्षित व्यक्ति आर्थिक विकास, सामाजिक सद्भाव और नवाचार के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति और प्रेरक शक्ति है। जैसे ही आप इस प्रतिष्ठित संस्थान के हाल से बाहर निकलते हैं, आपको याद रखना होगा कि आपकी शिक्षा ने आपको गंभीर रूप से सोचने के लिए, जटिल समस्याओं को हल करने के लिए और सामाजिक प्रगति में योगदान करने के लिए उपकरण प्रदान किया है। ये विद्यार्थियों, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग राष्ट्र निर्माण के अभिन्न अंग हैं। इंजीनियर और वैज्ञानिक आधुनिक समाज के निर्माता हैं, जो नवाचार को बढ़ावा देते हैं और ऐसे समाधान तैयार करते हैं जो हमारे समुदायों की जरूरतों को पूरा करते हैं। बुनियादी ढांचे के निर्माण से लेकर के स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाने तक, संचार को बढ़ाने से लेकर के स्थिरता को बढ़ावा देने तक आपका योगदान
देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण होगा। जैसे ही आप अपनी पेशेवर भूमिकाओं में कदम रखते हैं, अपनी विशेषज्ञता के साथ जुड़ी गहन जिम्मेदारी को याद रखें। सकारात्मक परिवर्तन लाने, अधिक समावेशी समाज का निर्माण करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करें। प्यारे छात्रों, आज आप अपने संस्थान में कुछ समय चिंतन जरूर करें। आप पाएंगे कि यह संस्था केवल सीखने की जगह से कहीं अधिक नहीं है। यह विकास की सुरक्षा, चरित्र की अग्नि परीक्षा और प्रेरणा का प्रतीक रहा है। इन दीवारों के भीतर आपको जो ज्ञान दिया गया है, जो मित्र आपने बनाए हैं और जो मूल्य आपने स्थापित किए गए हैं, वो किसी खजाने से कम नहीं है। आप इन्हें जीवन भर आगे ले जाएंगे। इस संस्था के प्रति हमेशा आभारी और ऋणी रहें, क्योंकि इसने आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार दिया है जो आज आप हैं। जब आप बाहर जाएंगे, अपना मार्ग तलाशेंगे, तो जरूर उस समय आपको आपकी डिग्री लोगों को आकर्षित कर सकती है, लेकिन उसके बाद जब आप मार्ग पर चलने लगेंगे तो आपके किए गए कार्य ही आपको लोगों के बीच में स्थापित करेंगे। और वह क्षण ऐसा होगा जब आपके अच्छे कामों के लिए सराहना तो मिलेगी ही, साथ में लोग ये भी पूछेंगे कि आपने शिक्षा कहाँ से पाई है। वह अच्छा ऐसा होगा कि तुरंत आपका यह प्रौद्योगिकी संस्थान याद आ जाएगा, और जब उसका नाम आप बताएंगे तो लोग गर्व के साथ उस संस्थान के प्रति भी और आपके प्रति भी एक अलग अनुभूति से देखेंगे। विश्वविद्यालय ने अपनी समृद्ध विरासत और उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ आपको आधुनिक दुनिया की जटिलताओं से निपटने के लिए ज्ञान से सुसज्जित किया है, पढ़ाया है। अध्यापकों ने भी परिश्रम किया है, आपने भी परिश्रम किया है, उन्होंने परिश्रम से पढ़ाया है, आपने परिश्रम से पढ़ाया है, और उस परिश्रम के बाद आपने परीक्षा किया है। परीक्षा के बाद परिणाम है, और परिणाम के बाद आज आप उस परिणाम पर पहुंचे हुए, जिसके लिए हम सब बैठे हैं। निश्चित रूप से इसकी विरासत के गर्व को साथ लेकर के चलने की आवश्यकता है, पढ़ाने की आवश्यकता है। सिद्धांतों और मूल्यों को इसमें समाहित किया है, उन्हें अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने दें। और जब यहाँ से आप जाएंगे, प्रत्येक देश दूसरे देश में अपने राजदूत नियुक्त करता है। उस राजदूत के द्वारा उस देश की बात जानी जाती है। उस राजदूत के कितने अच्छे काम हैं, उससे उस देश की प्रशंसा भी होती है, निंदा भी होती है। मुझे लगता है कि आप सभी लोग जब यहाँ से बाहर जाए तो आप लोग इस संस्थान के राजदूत बन गए। और वह तब संभव
ममता एक राजदूत के रूप में आपको दर्शाएगी। और एक बार पुनः आपको मैं बताऊं कि उस समय आपको भी और आपके संस्थान के दोनों की बात जानी जाएगी। जैसे देश की अच्छाई और बुराई राजदूत से होती है, वैसे ही संस्थान की भी अच्छाई और बुराई आपके कार्यों के द्वारा हो। बड़ी गहनता के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ आप सभी लोगों को इसमें जुड़ने की जरूरत है और ये मान करके चले, बड़े प्यार से इस पल को सजो करके रखें। आप जिस मात्र संस्था से जुड़े हैं, हमेशा उसका नाम आपके कार्यों में जुटा रहे। मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि संस्थान के तुरंत बाद आपकी यात्रा समाप्त नहीं होने वाली है, यात्रा तो शुरू हो गई। तो शिक्षा लेने आए तब शुरू हुई थी, आज शिक्षा पूरी हो गई है तो शुरू होने जा रही है। मतलब जीवन का मतलब है जीवन चलने का नाम, है ना। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। हर क्षण चरैवेति यह सिद्धांत लेकर के अगर आप चलोगे, जीवन में कभी भी आप पतन को नहीं प्राप्त करोगे, हमेशा उत्थान की तरफ करोगे। इस नाते आज इस दीक्षांत समारोह में आपको उपाधि प्राप्त करने के लिए मैं बधाई देता हूं। आपके अभिभावकों को बधाई देता हूं, आपके उन शिक्षकों को जिन्होंने कठोर परिश्रम करके आप लोगों को इस उपाधि तक पहुंचाया है, उनको भी बधाई देता हूं। मैं इस संस्थान को खड़ा करने के लिए जयप्रकाश जी को भी बधाई देता हूं। और अपने संबोधन में थोड़े से अपने जीवन को किन कर्म क्षेत्रों में लगाया, उसको शायद आपने सुना होगा। इस नाते मनोज गौड़ जी को भी बधाई देता हूं। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके भविष्य में कभी भी अंधेरा न आए, आपका पूरा भविष्य उजाले में रहे और आप भारत के जाज्वल्यमान नक्षत्र की तरह से जाने जाए। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अध्यापकों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, संस्थान की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके माता पिता की भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रतिष्ठा केवल सर्विस में नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा चरित्र में भी हो, यह आवश्यक है। आज आपको एक चांसलर के रूप में, एक कुलाधिपति के रूप में हमेशा भारत के चरित्र के साथ जोड़ करके आप अपने चरित्र को चलिए। यह शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Nestled among the mighty Himalayas stands a temple of education, an institution that shapes young minds of today into ambitious, conscientious and dauntless individuals. Individuals who will become leaders of tomorrow. This is
JP University of Information Technologies, Solan.